A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12th accountancy. In the last few videos, we discussed the chapter number 7, accounting for share capital, issue and forfeiture. You know very well, in the last few videos, we discussed the numerical problem related to the forfeiture of share and their reissue. Okay, so let's we take one more question to develop a better understanding regarding this topic, that is a forfeiture of share and their reissue. So let's we go to the question and solve it. The next question, as you can see in your screen, that is illustration 26a. The director of a company forfeited 100 equity share of 10 each fully called, on which 400 had been paid. 40 of these shares were reissued upon the payment of rupees 300. Generalize the transaction of the forfeiture and the reissue of share. So basically the illustration number 26 will be classified into the two categories, the case number A and the case number 2. So कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो क्वेश्चन नंबर 28 है, इलस्ट्रेशन 28, ये दो कैटेगरी में डिवाइड है, दैट इज कंडीशन नंबर ए एंड कंडीशन नंबर 2. कंडीशन नंबर ए में आपको अलग से फॉरफिशन रीइश्यू की एंट्री पास करनी है और कंडीशन नंबर बी में भी आपको डिफरेंट सिचुएशन में जनरल एंट्रीज पास करनी है. सो लेट्स वी सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन and thereafter we solve the second question. As you can see on the screen, that is illustration number 26 and case number A. You can see that the director of a company forfeited 100 equity share of rupees 10 each fully called. यानी कंपनी ने फॉरफीट किया 100 शेयर जिससे उसने फुल्ली कॉल्ड किया था, ऑन विच 400 हैड बीन पेड. तो अब आपको डायरेक्टली इंफॉर्मेशन नहीं लिखनी है, you will solve directly the question. You know very well, you have a better understanding about the journal entries. आपको सारी journal entries पता है कि जब हम शेयर को फॉरफीट करते हैं तो बेसिकली वी आर फोकसिंग ऑन द शेयर इशूड एट पार और प्रीमियम. सो इन दिस सिचुएशन वी हैव फाइंड दैट कि कंपनी ने 100 शेयर फॉरफीट किए जो 10 रुपए पे इशूड थे और कॉल्ड अप भी पूरा 10 रुपीज था, यानी इसमें कहीं भी प्रीमियम का नाम नहीं आ रहा है. सो इन दिस सिचुएशन वी एज्यूम दैट कि शेयर किस पे इशू होगा, पार पे. सो यू नो वेरी वेल, जब कोई शेयर पार पे इशू होता है, व्हेन एनी शेयर इशूड एट पार एंड देयर आफ्टर कंपनी फॉरफिटेड सच शेयर, सो इस सिचुएशन में एंट्री क्या पास होती है, दैट इज एंट्री नंबर 1, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर forfeiture account to calls in arrear. Okay, so what is the journal entry? Share capital account debit to share forfeiture to calls in arrear. शेयर कैपिटल के सामने कौन सी वैल्यू लिखते हैं, द अमाउंट कॉल्ड, जितना शेयर पे हमने पैसा डिमांड किया. हाउ मेनी शेयर फॉरफिटेड बाय द कंपनी, 100 शेयर, और 100 रुपीज पे कंपनी ने कॉल्ड अप कितना किया है, दैट इज 10 रुपीज. So the total called up amount on 100 share, that is 1000. Okay, and now आगे लिखा हुआ है on which rupees 400 has been paid. उसमें से 400 रुपए हमें पेड हो गया, तो पेड वैल्यू कहाँ लिखते हैं, in front of share forfeiture account. तो 1000 में से 400 will be received by the company on which 400 rupees is paid. So कितने रुपीज अनपेड होंगे, that is 600 rupees. Is that clear? And after that, you know very well, after that कंपनी रीशूट सच शेयर, और कितने शेयर फॉरफीट किए, 100, बट रीशू कितने में कर रहे हैं, कितने शेयर कर रहे हैं, ओनली 40. प्लीज लिसन केयरफुली. इन दिस सिचुएशन कंपनी डज नॉट इशू फुल शेयर. कंपनी ने फॉरफीट किया 100 शेयर, रीशू कितना करी है, 40 शेयर. ओके, सो कंपनी ने रीशू कितना किया, ओनली 40 शेयर, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट to share capital. So you can see that how many share reissued by the company, that is only 40, and what is the face value of the share, that is 10. So the total value of the share is 400. 40 share issued by the company, reissued by the company, और एक शेयर की प्राइस कितनी है, 10 rupees. So the company issued, the value of the share is rupees 400, और कितने पे इशू किया, you can see that only 300. कितने पर इशू किया, ओनली 300. ओके, सो यू कैन सी दैट
400 का शेयर कितने पे इशू हुआ, 300 पे। तो यू कैन सी दैट शेयर किस पे इशू हुआ, पार पे, प्रीमियम पे कि डिस्काउंट पे? सर कंपनी री इशूड इट शेयर एट डिस्काउंट, सो इन दिस सिचुएशन द फॉरफीचर अमाउंट विल बी 100, यानी कि 100 रुपए किस पे एडजस्ट होगा, फॉरफीचर पे। ओके, बट यू नो वेरी वेल, after the reissue of the share, the balance in share forfeiture account should be transferred to the capital reserve account. यानी कि रीइश्यू करने के बाद जो भी फॉरफीचर में बैलेंस होता है उसे हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व में। सो द एंट्री विल बी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। यस सर। अमाउंट क्या होगी सर, 300। कितना होगा, 300। 300 हाउ, 400 माइनस 100 दैट इज 300। ओके, अभी तक तो आप लोग यही जान रहे हो। मैं कह रहा हूं ये गलत है। क्यों गलत है मैं भी बताऊंगा। कैपिटल रिजर्व में 300 अमाउंट ट्रांसफर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी वो मैं समझा रहा हूं आपको। बिकॉज इन दिस सिचुएशन, दैट्स व्हाई आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन चूज किया है और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इट इज अ न्यू टॉपिक रिलेटेड टू द री इशू ऑफ द शेयर। इसमें सर नया क्या है, इसमें नया ये है कि कंपनी फॉरफीटेड 100 शेयर बट रीइश्यूड ओनली 40 शेयर। कंपनी ने फॉरफीट कितने शेयर किए हैं, 100, बट रीइश्यू कितना कर रही है, 40। तो ये नया सिचुएशन नहीं हुआ। यस सर, इट इज अ न्यू सिचुएशन। सर इस सिचुएशन में हमें क्या करना होता है, याद करिए, रिमेंबर द टॉपिक। जब मैं आपको फॉरफीचर ऑफ शेयर का टॉपिक बता रहा था तो उसमें मैंने आपको क्लियरली एक लाइन बताई थी, व्हेन कंपनी रीइश्यूड अ पार्ट ऑफ फॉरफीटेड शेयर, यानी जब कंपनी सारा शेयर रीइश्यू नहीं करती, फॉरफीटेड शेयर का सिर्फ पार्ट रीइश्यू करती है, तो सिचुएशन में कैपिटल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर पूरा नहीं किया जाता। आपको लाइन याद होगी, एक बार फिर से मैं आपको रिमेंबर करा देता हूं। इन केस ऑफ व्हेन ऑल द फॉरफीटेड शेयर आर नॉट रीइश्यूड, in case when all the forfeited share are not reissued, only that proportion of share forfeiture account which belong to the reissued share should only be transferred to the capital reserve account। यानी जब फॉरफीट किया हुआ सारा शेयर सारा शेयर रीइश्यू नहीं होता, तो जितना शेयर रीइश्यूड हो चुका होता है, जितना शेयर रीइश्यूड हो चुका होता है, सिर्फ उसी से रिलेटेड शेयर फॉरफीचर की अमाउंट को ही हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। सर ये कैसे कैलकुलेट होगा? सो इट इज अ सिचुएशन, इट इज अ न्यू सिचुएशन। इस सिचुएशन को क्या कहते हैं? द नेम ऑफ दिस सिचुएशन इज व्हेन रीइश्यूड शेयर आर लेस देन फॉरफीटेड शेयर। तो इस सिचुएशन का क्या नाम है? व्हेन रीइश्यूड शेयर आर लेस देन फॉरफीटेड शेयर। यानी कंपनी ने जितना शेयर रीइश्यू किया और जितना शेयर फॉरफीट किया, फॉरफीट कितना किया 100, बट रीइश्यू कितना किया 40। सो इस सिचुएशन में हाउ विल यू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व? सो इन दिस सिचुएशन amount transfer to capital reserve कैसे कैलकुलेट होगा? हाउ वी विल कैलकुलेट अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व? हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। द फॉर्मूला इज शेयर फॉरफीचर अकाउंट माइनस ब्रैकेट total forfeiture amount into divided by total forfeiture amount divided by total forfeited share
multiplied by reissued share. प्लीज मैं इसको जूम कर देता हूं आपकी हेल्प के लिए. ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला इज amount transferred to capitalism equals to total forfeited amount divided by total forfeited share multiplied by reissued share. इतना सॉल्व करने का माइनस amount utilized on reissue of share. Please note down this formula in your copy. ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा? When the reissued share are less than the forfeited share. यानी जब कंपनी सारा शेयर रीइशू नहीं करती है, सिर्फ कुछ पार्ट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर को रीइशू करती है. सो इन दिस सिचुएशन we have to calculate the amount transferred to capitalism with the help of this formula. The formula is total forfeited amount divided by total forfeited shares into reissue share minus amount utilized on reissue of share. So sir, इसका application बताओ. How will you apply this formula in this question? So this formula apply in this question are as follows. So according to this question, you can see that the total forfeited amount, that is 400. Yes sir, the total forfeited amount of 400 and total forfeited share, that is 100. And you know very well how many share reissued by the company, that is 40, minus amount utilized on reissue of share. जब शेयर रीइशू किया गया है तो कितना रुपीस यूटिलाइज हुआ है? 100. यूटिलाइज मतलब जब हम शेयर को रीइशू किए हैं तो कितना पैसा खर्च हुआ है फॉर फ्यूचर में से? 100. ओके, see that the total forfeited amount 400 and total forfeited share, that is 100, multiplied reissued share is 40 minus amount utilized on the reissue of the share. You know very well, जब शेयर इशू है तो फॉरफीचर में से कितना यूज हुआ है? 100. सो इट विल बी डिडक्टेड. अब जो मैं सॉल्व करूंगा, एंड दिस अमाउंट विल बी नोन एज द अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व. कितना आएगा? यू कैन सी दैट 160 minus 100 equals to 60. Okay, so the amount transferred to capital reserve in this question, that is 60. So the third entry, that is share forfeiture account debit to capital reserve, that is 60. Okay सर, ये तो फॉर्मूला हो गया. कॉन्सेप्ट समझाइए, ये कॉन्सेप्ट है क्या? सर ये कॉन्सेप्ट ये है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचो. इफ यू थिंक प्रैक्टिकल दिस प्रॉब्लम, सो यू कैन सी दैट कि इज दैट जब हम फॉरफीट कर रहे हैं तो हमें फायदा कितना हो रहा है? When we forfeit the share तो हमें फायदा हो रहा है सर 400 रुपीज का. लेकिन ये फायदा कितने शेयर का है? सर हम जो 400 रुपीज प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं ये पूरा 100 शेयर पे है. और हम कितना शेयर इशू कर रहे हैं? 40. तो 40 शेयर का फायदा कितना होगा? यू नो वेरी वेल, व्हेन वी फॉरफीट द शेयर 100 तो वी अर्न 400 रुपीज प्रॉफिट. यानी हम 400 रुपए का प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं 100 शेयर पे. तो 40 शेयर का प्रॉफिट कितना होगा? 160 रुपए. ओके, सॉल्व कर लिया. अब यू नो वेरी वेल, जब शेयर को रीइश्यू किया, कितने शेयर को? 40 शेयर को. तो लॉस कितना हो गया? 100 रुपए. तो 60 रुपए ही तो 40 शेयर का भी प्रॉफिट बचा हुआ है. यही प्रॉफिट तो जाएगा कैपिटलिज्म में. इसको आप बार बार प्ले करके सुनना. 400 रुपए प्रॉफिट हुआ 100 शेयर पे, तो 40 शेयर पे प्रॉफिट कितना होगा? यस सर, समझ में आ रहा है. कितना होगा? 160. और 40 शेयर को रीइश्यू करने में लॉस कितना हो गया? 100. तो 160 में से लॉस चला गया 100. तो कंपनी के पास अभी कितने रुपीस प्रॉफिट बचे हैं? 60. और आपको पता ही है कि कंपनी जितना शेयर रीइश्यू कर देती है, सिर्फ उतना ही शेयर का प्रॉफिट जो होता है कैपिटलिज्म में ट्रांसफर होता है. यानी कंपनी ने रीइश्यू कितना किया? 40 शेयर. तो 40 शेयर का जितना प्रॉफिट बचा होगा,
दैट इज 60 रुपीज, यही सिर्फ ट्रांसफर होगा कैपिटलिज्म में। बाकी पड़ा रहेगा कि जब इन फ्यूचर में कंपनी को भी और कितना शेयर इशू करना है, 100 में से 40 कर चुकी है, जब 60 शेयर फिर बाद में इशू करेगी तो उसमें से उसका प्रॉफिट कितना बचा होगा, आप खुद देख लो, 240 रुपए। उसका 240 रुपए वो कहीं ना कहीं एडजस्ट करेगी रीइशू पे। और अगर उस टाइम पे 240 में से मान लीजिए 200 एडजस्ट हो जाता, तो उस टाइम जब वो बाकी 60 शेयर इशू करेगी तो 40 रुपए कैपिटलिज्म में ट्रांसफर होगा। यानी रीइशू होने के बाद जब उस शेयर पे जितना प्रॉफिट बच जाता है उसे हम कैपिटलिज्म में ट्रांसफर करते हैं। सो यू हैव अ टू ऑप्शन, या तो प्रैक्टिकली समझ के आप कैपिटलिज्म में ट्रांसफर करना सीख जाओ, या यू विल लर्न दिस फॉर्मूला। द फॉर्मूला इज टोटल फॉरफिटेड शेयर, total forfeited amount divided by total forfeited share multiplied by reissue share, जो अमाउंट आएगी माइनस अमाउंट यूटिलाइज्ड ऑन reissue of share. So let's we move to the next part of this question. You can see this question on your screen, the part number 2. Okay, yes sir. Okay, the part number 2, Monica, who was allotted 500 share of 10 each by the company, failed to pay the final call of rupees 4. Share is forfeited and reissued to SEMA at 10 each. Generalize the transaction in respect of forfeiture and reissue of share. So it is very easy. कंपनी ने फॉरफिट कितना शेयर किया, 50 शेयर, और रीइशू कितना किया, पूरे शेयर इशू कर दिए। कितने पे इशू किया, 10 रुपीज। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। सो लेट मी सॉल्व वन बाय वन। सो फर्स्ट एंट्री, और मैंने बताया था कि जब भी एंट्री पास करना है उससे पहले क्या देखना है, बिफोर द पासिंग जनरल एंट्री रिलेटेड टू द फॉरफीचर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी दैट शेयर इशूड एट पार और प्रीमियम। सो मोनिका हु वाज अलॉटेड 58 रुपीज बाय द कंपनी फेल्ड टू फाइनल कॉल ऑफ रुपीज 4। तो सर इसमें कुछ ऐसा नहीं है, फॉर प्रीमियम का कोई नामो निशान नहीं है। सो वही सिंपल एंट्री, दैट इज शेयर कैपिटल टू शेयर forfeiture, 2 calls in arrear. Okay, how many share forfeited by the company, that is 50 share 10 rupees का, 50 share 10 rupees के called up है, that is 500। और according to the given information you can see that company को कितने रुपीस मिले हैं कि नहीं मिले, क्या बताया, fail to pay the final call of rupees 4, यानी failed लिखा है, यानी कि एरियर दिया है। 50 पे 4 रुपीज नहीं मिले, दैट इज 200। तो 500 में से 200 रुपीज नहीं मिले तो कितने रुपीज मिले होंगे, हाउ मेनी अमाउंट रिसीव बाय द कंपनी, दैट इज हाउ मच अमाउंट रिसीव बाय द कंपनी, दैट इज 300। सो फर्स्ट एंट्री इज टू बी क्लियर। सेकेंड, देयर आफ्टर कंपनी ने वो शेयर किसको इशू कर दिया, री इशू टू द सीमा एट 40 रुपीज, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर इशू किए गए हैं, these शेयर वेर forfeited and reissued to सीमा at 10 rupees each। तो 50 का 10 that is 500 and this is a 50 into 10 500। so this share reissued at par, 10 रुपए का शेयर गया भी, 10 रुपए आया भी। एज यू नो कि इस क्वेश्चन में कोई भी रुपया फॉरफीचर के समय यूज नहीं हुआ, सॉरी रीइशू के टाइम यूज नहीं हुआ। द टोटल मनी 300 rupees will be transferred to the capital reserve. So the next entry, share forfeiture account debit to capital reserve, that is 300 300। Okay, so please note down all the entries in your copy. Now we will move to the next part of this question. The next question which are related to the missing information, the problem number 1 related to the missing information. This question is also popular for your examination purpose. Sometimes in your examination some kind of the problem asked by the examiner, that is a missing, fill in the missing figure in the following journal entries। यानी आपको क्या करना होता है, ये एंट्रीज को फॉलो अप करके जो भी मिसिंग इंफॉर्मेशन है उसको फिलअप करना पड़ता है। सो द प्रॉब्लम नंबर 1, you can see that on a screen, the journal entry will be premises account debit
stock account debit. Number third, debtors account debit, sundry debtors account debit, and plant and machinery account debit, and dot 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 account debit to creditor, sundry creditor to Ram Limited. Okay, and the amount is for premises, the amount will be 8 lakh. For stock, the amount will be 2 lakh. Data 2 lakh 50,000. Plant and machinery for rupees 4 lakh 50,000. And for creditor 3 lakh, and for Ram Limited that is 17 lakh. So you know very well, this is the journal entry related to the which topic? This journal entry is related to the, yes, issue of share for other than cash consideration. Yes, यानी जब हम शेयर को इशू करते हैं कैश के लिए नहीं, फॉर अनदर पर्पस, तो ये कौन सा पर्पस है? फॉर परचेजिंग ऑफ अनदर बिजनेस। यानी जब कंपनी शेयर इशू करती है कैश के लिए नहीं बल्कि कैश के अलावा, और कैश के अलावा में भी आप यू नो वेरी वेल कैश के शेयर इशू कर रही है वो किस लिए? बिजनेस को खरीदने के लिए, किसी दूसरे कंपनी के बिजनेस को। बिजनेस किसके बिजनेस को खरीद रही है? राम लिमिटेड के बिजनेस को खरीद रही है। कितने में? 17 लाख में। और खरीदने के बदले उसे क्या क्या मिल रहा है? प्रीमाइसेस 8 लाख रुपीज का, स्टॉक 2 लाख रुपीज का, 2,50,000 रुपीज का डेटर मिल रहा है, 4,50,000 रुपीज का प्लांट एंड मशीनरी मिल रहा है। सो इन दिस सिचुएशन यू नो वेरी वेल हमें क्या करना पड़ता है? सर व्हेन वी पास दिस एंट्री, अगर डेबिट में बैलेंस आता है तो इट विल बी टेकन एज गुडविल, और क्रेडिट में बैलेंस आता है तो इट विल बी टेक एज द कैपिटल रिजर्व। यस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द total 8 lakh to 10 lakh, 12 for 16 and 17 lakh. So the total of debit side is 17 lakh and total of credit side that is 20 lakh. तो डेबिट का टोटल है 17 लाख, क्रेडिट का टोटल है 20 लाख। तो डिफरेंस किस साइड आ रहा है? डिफरेंस विल बी प्लेस्ड ऑन डेबिट साइड दैट इज फॉर रुपीज 3 लाख। और यू नो वेरी वेल जब भी डेबिट में बैलेंस आता है उसको हम लोग किस नाम से शो करते हैं? दैट इज गुडविल अकाउंट। Okay, so you can see that what is the correct entry or full entry, that is the premises account debit, stock account debit, debtors account debit, plant and machinery account debit, goodwill account debit to creditors to Ram Limited। अगर यही बैलेंस इस साइड आता, इधर वैल्यू कम होती, जितनी भी वैल्यू कम होती हम लिखते टू कैपिटल रिजर्व। सो दैट्स द फुल एंट्री। Now we will move to the second entry of same question। इसी क्वेश्चन का पहला एंट्री मैंने कंप्लीट किया है, अब हम लोग दूसरी एंट्री कंप्लीट करेंगे। ओके, सो कंप्लीट हो गया। गुडविल कितना आया था? दैट इज 3 लाख। तो याद रखिएगा गुडविल इज 3 लाख रुपीज। द सेकेंड एंट्री गिवन ऑन स्क्रीन दैट इज डॉट 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 डेबिट to dot 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 to dot 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 and to dot dot dot, and what is the information given in the narration? Please listen carefully। ये एंट्री तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक कि आप नरेशन को केयरफुली पढ़ेंगे नहीं। The information given as a narration is for purchase consideration settle up by issue of 15,000 equity share of 100 each at 10% premium and balance amount by check। यानी जितना भी हमें परचेस कंसिडरेशन देना था, किसको देना था? राम लिमिटेड को। सो यू नो वेरी वेल सेकेंड जर्नल एंट्रीज में डेबिट कौन होगा? दैट इज राम। राम को हमें कितना देना था? अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट एंट्री द अमाउंट पेबल टू द राम दैट इज 17 लाख। और उसमें से हम लोगों ने डिसाइड क्या किया कि 15,000 का शेयर 100 रुपीज पे हम पे करेंगे और जिसमें 10% प्रीमियम भी होगा। सो कंपनी के पास से शेयर कितना जाएगा?
कंपनी के पास से शेयर जाएगा, दैट इज शेयर कैपिटल। हाउ मेनी शेयर इशूड बाय द कंपनी? 15,000। और एक शेयर की वैल्यू कितनी होगी? यस, दैट इज 100 रुपीज। सो द वैल्यू इज 15 लाख। सो यू कैन सी दैट 17 लाख में से 15 लाख रुपीज का हमने शेयर दे दिया और 10% उसे प्रीमियम भी देना है। एंड यू नो वेरी वेल, व्हेन शेयर इशूड एट प्रीमियम, so the entry will be security premium reserve is also credited, and the amount will be, what is the amount? The 10% of 15 lakh। 15 लाख रुपीज का शेयर है, 10% प्रीमियम, सो 15 लाख का 10% कितना होगा? दैट इज 1,50,000। गुड। एंड बैलेंस बाय चेक, और बाकी पैसा किससे दिया गया? चेक। एंड यू नो वेरी वेल, जब हम पूरा पैसा चेक के थ्रू देंगे बैलेंस अमाउंट, सो विच अकाउंट इज क्रेडिटेड? टू बैंक। एंड बैलेंस अमाउंट कितना बचा? सो यू कैन सी दैट 15 लाख 1,50,000, टोटल 17 लाख देना था, सो बैलेंस अमाउंट विल बी 1,50,000। हाउ? 17 लाख माइनस 15 लाख माइनस 1,50,000। Sorry, it is yes, correct. That is only 50,000. Sorry, only 50,000. So you can see that it is a complete question. Firstly, we fill up the information regarding the goodwill or capital reserve, which are totally based on the balance. First of all, we take the debit balance, and thereafter we take the credit balance. And now the difference, the balance was occurred on the debit side, and it will be write down as a goodwill account. And in the second entries, you can see that in this entry, all the entries are blank. सारी entries blank थी. So you can see that सबसे पहले हम लोग डेबिट को fill किया, because who's a receiver? Ram Limited. So Ram Limited को डेबिट किया. Thereafter we provide the share, 15,000 share of rupees 100 each, that is 15 lakh. Now you know very well, share issued at premium, and when any share issued at premium, in this situation we credited the security premium reserve by their premium amount, that is 1,50,000, and balance amount will be paid by the check. The balance amount will be 50,000. Okay, so today we completed the two important practical problem related to this chapter. The first practical problem which are related to the new topic. You know very well, क्या new topic था आज का? Our new topic for today is when reissued share are less than the forfeited share. Sometimes company does not issue full forfeited share. It can be reissued the part of the forfeited share. So in this situation, the formula of amount transferred to capital reserve are as follows. इस situation में हम लोग क्या करते हैं? We will take the help of the following formula, that is amount transfer to capital reserve. और वो formula क्या है? You know very well. यानी जब हम शेयर रीइश्यू करते हैं और सारा शेयर रीइश्यू नहीं करते हैं, सिर्फ पार्ट ऑफ द शेयर रीइश्यू करते हैं, इस सिचुएशन में अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं. द फॉर्मूला इज टोटल फॉरफीटेड शेयर, total forfeited amount divided by total forfeited share multiplied by reissue share. ओके, जो वैल्यू आएगी उसमें से माइनस करेंगे, लेस अमाउंट यूटिलाइज्ड ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर. पहला प्रॉब्लम हमने ये डिस्कस किया, और दूसरा नई चीज क्या सीखी आज के वीडियोस में. एंड टू सेकंड वन, द फिल इन द ब्लैंक्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, और वो भी किस टॉपिक से रिलेटेड? दैट इज इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश कंसिडरेशन. ओके, सो ये दो टॉपिक आपने देखा. फिलिंग द ब्लैंक्स विच काइंड ऑफ द जर्नल एंट्री, जो जर्नल एंट्रीज थी उसको फिल करना सीखा. ओके, so these two topics studied by us in today's classes,
In the next video, we will come to the next type of the practical problem related to this chapter, that is a forfeiture of share in case of oversubscription. Please note down, this topic is very important for you. Forfeiture of share in case of oversubscription. So firstly, you please note down this formula in your copy and solve the exercise question. So I hope today we cleared all the topics very easily, and I requested to all the students, please solve the exercise question given in your book. Okay, so thank you, thanks a lot.